Hello students, welcome all of you. Welcome in political science class. We are reading the 12th chapter or last chapter of our book Politics in India Since Independence. इसका जो last chapter है Indian Politics Trends and Development. Clear? We are reading about this chapter. Clear? In this chapter we read about the coalition politics in India, which started from 1989. Clear? With the government of VP Singh, विश्वेंद्र प्रताप सिंह, फर्स्ट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. क्लियर? हम नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट से रीड आउट करते हैं. इंडिया में जो कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिकॉज विद द इंडिपेंडेंस और विद द फर्स्ट जनरल इलेक्शन यू कैन से, हम कह सकते हैं जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इन 1952. क्लियर? 1952 में जो पहला इलेक्शन होता है, आफ्टर दैट Congress dominance started in India. Clear? There was only a shorter period of time from 1977 after emergency to 1979 when there was a government of Janata Party in the leadership of Morarji Desai and Chaudhary Charan Singh. Clear? So वो एक गवर्नमेंट आता है, बहुत छोटा टाइमिंग आता है. Otherwise there was a dominance of Congress Party. We read in that in 1984 general election of India got conducted due to the assassination of इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी का जो मर्डर हो जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण, जो अमृतसर में आर्मी का एंट्री होता है उसके कारण डेथ हो जाता है. सो आफ्टर दैट राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कंडक्टेड इन 1984 एंड कांग्रेस पार्टी won 414 seats. Clear? And due to this Congress started dominance. But in the time period of Rajiv Gandhi government, there were several problems, several cases which we read earlier, that the Bofors case, Shabano case, and LTT problem. So due to this, in 1989 election, Congress only got 197 seats, and VP Singh government, National Front government जो थी VP Singh की leadership में, clear, that party won 143 seats, and with the support of BJP and लेफ्ट दे फॉर्म द गवर्नमेंट. सो हम यूपीए तक हमने पढ़ लिया था. वीपी सिंह गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट फर्स्ट, नेशनल फ्रंट सेकंड इन द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर. क्लियर? एंड आउट ऑफ सपोर्ट ऑफ कांग्रेस. क्लियर? आफ्टर दैट नरसिम्हा राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो कांग्रेस के नरसिम्हा राव थे उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट दैट सपोर्ट द AIADMK के सपोर्ट से वो चली थी. क्लियर? आफ्टर दैट we read about the BJP minority government which only worked for 13 days. जो 13 days के लिए वर्क की थी in the leadership of अटल बिहारी वाजपेयी. After that HD देवेगौड़ा जनता दल become the form the यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. पहले नेशनल फ्रंट था, अब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई थी. क्लियर? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, बट देन HD Devegowda also resigned from his post, and after I.K. Gujral became the Prime Minister of India, but he also worked for a shorter period of time and election conducted in India. After that NDA first. Today we will read about NDA third and NDA fourth, but NDA first. Clear? In 98, Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister of India, but that government also worked for 13 months. Because AIADMK party of Jayalalitha withdraw the support from Atal Bihari Vajpayee party. After that re-election conducted in India and Atal Bihari Vajpayee government worked for 5 years. Clear? Next election conducted in 2004 and Congress become the largest party of parliament. जो कांग्रेस थी वो पार्लियामेंट की लार्जेस्ट पार्टी बनी थी. Clear? So Congress become the largest party, but still Congress did not have majority. Congress पास majority नहीं थी. Then Congress formed UPA, United Progressive Alliance, with the support of 27 smaller parties. डिफरेंट जो parties थी उनके सपोर्ट से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर्म किया था. दैट वाज 2004 to 2009. UPA वन गवर्नमेंट चली थी. क्लियर? आफ्टर दैट इन 2009 again election conducted, general election. Still Congress party become the largest party of parliament, and now Congress improved its performance and Congress won 206 seats. Clear? And due to this UPA second. Clear? UPA second government got formed in India from 2009 to 2014. Clear?
After that, in today's class, we will read about with the year of 2014 की year से हम read out करेंगे. As I told you in the last class, during the UPA second period or at the time of rule of UPA second, several corruption arised. Corruption of Commonwealth Game, 2G. In the 2G refers to the ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो मोबाइल्स का लाइसेंस जो कंपनीज को मिलता है उसका जो हुआ था, उस केस में काफ़ी करप्शन हुआ था. कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली 2010, दिल्ली में जो 2010 में केस हुए थे. इन्फ्लेशन वन ऑफ द मेजर रीज़न, जो बेसिक एसेंशियल गुड्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे. फ्यूल LPGs जो सिलेंडर्स आते हैं, इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. गवर्नमेंट ऑल्सो लिमिटेड द सप्लाई ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर्स था उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ने लिमिटेड कर दिया था. क्लियर. कोल स्कीम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल माइंस, जब कोल माइंस का ऑप्शन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया गया था. क्लियर. एंड ड्यू टू द सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो दैट द ऑपोजिशन पार्टीज वर गैदरिंग अगेंस्ट द कांग्रेस, स्पेशली द कांग्रेस पार्टी, एंड बीजेपी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ इट. जो बीजेपी थी उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था. वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इट, व्हेन वी रीड अबाउट द कोलिशन पॉलिटिक्स, अर्लियर देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस बिकॉज देयर वाज ओनली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया. अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, पहले इलेक्शन से बात करें, तो कांग्रेस का डोमिनेंस होता था 52 से 84 तक चलता है, 85 के इलेक्शन 84 के इलेक्शन तक चलता है. द मेन रीजन वॉज देयर वॉज नो अदर लार्जेस्ट पार्टी इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस. इसका मेन रीजन एक ही आता है कि कांग्रेस के सामने कोई बड़ी पार्टी होती नहीं है नेशनल लेवल पे. क्लियर. बट नाउ देयर वर सम अल्टरनेटिव्स ऑफ द कांग्रेस. अब ये हो गया था कि कांग्रेस के अल्टरनेटिव्स आ रहे थे, एंड कांग्रेस वॉज आउट फ्रॉम द रूल एंड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स. पिछले 10 ईयर्स से अगर बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट से बाहर थी, आउट सपोर्ट दे रही थी एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट को, आई.के. गुजराल की गवर्नमेंट को, बट वो रूल से बाहर थी. सो ड्यू टू दिस कांग्रेस रूल फ्रॉम 2004 to 2014. 10 ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब 10 ईयर्स का रूल होता है ये काफ़ी बड़ा पीरियड होता है. एंड ड्यू टू द डिफरेंट इश्यूज, बट दीज इश्यूज आर अपार्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल्स माइंड गॉट चेंज्ड. जब एक गवर्नमेंट 10 ईयर्स तक रूल कर लेती है, इश्यूज एक अलग मैटर है. इश्यूज क्रिएट हो रहे थे वो हर गवर्नमेंट में होते. इट वॉज नॉट न्यू फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, that time also several issues arose against of Nehru, but there was dominance of Congress party, dominance of Nehru, so no one talked about it. ऐसा नहीं था कि पहले की गवर्नमेंट में इशू नहीं आते थे, इशू पहले भी आते थे, बट इतना कोई बात करने वाला नहीं था और ऑपोजिशन पार्टीज नहीं थी. बट फ्रॉम 2004 to 2014 द गवर्नमेंट वाज ऑफ कांग्रेस एंड पीपल्स वांट चेंज. पब्लिक हमेशा चेंज चाहती है. पब्लिक एक ही गवर्नमेंट को हमेशा कंटिन्यू रखना नहीं चाहती है. बीजेपी इज रूलिंग फ्रॉम 2014 एंड नाउ यू कैन सी दैट सम पीपल्स नाउ आर गोइंग अगेंस्ट द बीजेपी. अब जो पब्लिक है, जो अभी तक उसने लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है. मे बी इट इज पॉसिबल दैट बीजेपी विल विन द इलेक्शन ऑफ 2024. जो नेक्स्ट इलेक्शन होना है, चांस है उसमें बीजेपी जीत जाए. मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज नो वन कैन मेक प्री एजम्पशन अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आप कभी भी प्री एजम्पशन नहीं कर सकते हो. दैट द पार्टी हु वॉन 414 सीट्स इन द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी, एंड विद इन 5 years दैट पार्टी केम ऑन 197. सो यू कांट एज्यूम द इंडियन पॉलिटिक्स. So BJP still have only 303 seats. हम कांग्रेस की बात करें, इसके पास 414 सीट्स थी 529 में से, फिर भी वो 197 पर आ गए. तो बीजेपी के पास तो अभी 303 सीट्स थी. तो आप इतना ज़्यादा एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या होगा. बट एज एक्सपेक्टेशन दैट बीजेपी, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन, जो मेन रीज़न अभी भी वही आ रहा है. If BJP is dominating right now, the main reason is absence of opposition. Opposition में आपके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है जो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके, और कोई रीज़न नहीं है.
देयर इज नॉट अ मेजर की बिहाइंड टू डिफीट द बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता है, बट देयर इज नो ऑपोजिशन लीडर इन फ्रंट ऑफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी। So that is becoming the reason for the dominance of Congress. So from UPA 1 or UPA 2 government, during that time, different issues arise in India, and people want to make change in India. Narendra Modi was emerging as a national leader in India, or I can personally say as the leader of Hindu community. नरेंद्र मोदी का जो एक इमेज था वो एक हिंदू लीडर का था, ड्यू टू द गुजरात रॉयट्स और गोधरा केस। जो गोधरा में ट्रेन बढ़ने के बाद जो रॉयट्स हुए थे, कम्युनल रॉयट्स हुए थे, उससे कारण नरेंद्र मोदी का जो एक इमेज था वो एक हिंदू लीडर का था। एंड सेवरल टाइम ही प्रूव्ड इट। ड्यू टू दिस इन 2014 इलेक्शन polarization arrived in India. Now question arises, what is polarization? As I told you in earlier class, that division of peoples on the basis of ideology, on the basis of leaders, on the basis of thoughts, etc. On the basis of caste, community, religion, जिसमें भी आप polarize हो जाते हो। So in 2014 election, it was definite and all political thinkers were assured about it that the Congress will not come in the power. ये सबको डेफिनेट था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस तो पावर में नहीं आना है, बिकॉज there are several cases against the government and allegation on the prime minister regarded as the leader of government। आप प्राइम मिनिस्टर को क्या रिगार्ड करते हो कि वो गवर्नमेंट का लीडर है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द इमेज क्रिएट बाय ऑपोजिशन पार्टीज एंड द मीडिया ऑल्सो इन द डाउनफॉल ऑफ यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट देयर वाज अ मेजर रोल ऑफ मीडिया हाउसेज। जो मीडिया हाउसेज होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस को डिफीट करने में, बिकॉज दे वर क्रिएटिंग अ फिनोमिना अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट कि कांग्रेस की गवर्नमेंट खराब है। जब आपको कोई एक ही चीज बार बार बताई है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, आई मस्ट से दैट वन टाइम यू विल थिंक अबाउट इट। आप किसी में बहुत फेथ रखते हो, लेकिन जब आपको बार बार वही चीज कहा जाए, अरे नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, तो एक बार तो आपके माइंड में आके कि कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। Clear? So phenomena also against the Congress party created by the media houses and also by the opposition parties. They made allegation on the Manmohan Singh that Manmohan Singh is not an able prime minister for nation because he is working just as a puppet. तो मनमोहन सिंह है वो एक पपेट की तरह वर्क कर रहे हैं, जैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी कह रहे हैं वैसा वर्क कर रहे हैं। इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस election got conducted in 2014, clear, and after 1989 in 2004 election, first time a political party came in the power with the majority। 1989 के बाद ये पहली बार हुआ, 1989 में नहीं है, 1984 में मेजोरिटी आया था, 89 में तो हंग असेंबली हुआ था, फ्रैक्टेड मैंडेट था। इन 84 30 इयर्स की ड्यूरेशन के बाद a government come with the majority and BJP won 282 seats out of 543। तो 543 पार्लियामेंट की सीट से उसमें से 282 सीट्स बीजेपी वॉन करती है। एंड कांग्रेस पार्टी which was the largest and the oldest political party of India only limited to the 44 seats। कांग्रेस का नंबर कहाँ तक रह गया? 44 सीट्स का। Even the Congress party was not able to get the or acquire the criteria for the opposition party's leader। कांग्रेस का सीट का नंबर ये इतना कम आ गया था कि आपको ऑपोजिशन पार्टीज का भी टाइटल नहीं मिल सकता था। In the parliament or in the Lok Sabha, there is a post of opposition party leader। Opposition party leader का एक post होता है that only given to that party which has largest party in the opposition। तो opposition में largest party होती है, but there is a criteria for it that opposition parties have to maintain 110 seat। तो total 543 सीट्स है, आपका 110 जिसका आपके पास होना चाहिए, मीन्स मिनिमम 54 सीट्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये भी पोस्ट नहीं मिली बिकॉज 44
था और अभी भी वैकेंट है, बिकॉज अभी भी कांग्रेस के पास 52 है, तो आप अपोजिशन पार्टी के लिए अभी भी एलिजिबल नहीं हो, मीन्स आपको लीडर का पोस्ट नहीं मिलेगा, अपोजिशन पार्टी को बट लीडर का पोस्ट नहीं मिलेगा। So in that election, BJP won the majority with the support of other parties. BJP made alliance with other party. Why? Because BJP want to surplus their number. उनका नंबर था 282, BJP उसको बढ़ाना और चाहती थी और सपोर्ट लेना चाहती थी। With the support of other parties, BJP made an alliance that was known as NDA Third. इसको कहा गया NDA Third, National Democratic Alliance Third. फर्स्ट एंड सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, ये थर्ड था। एंड एनडीए फॉर्म विद 323 मेंबर्स सपोर्ट। एनडीए ने जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी वो 323 मेंबर्स के सपोर्ट से गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। डिफरेंट स्मॉल पार्टीज मेड अलायंस विद द एनडीए। इन दैट इलेक्शन ऑपोजिशन पार्टीज वर आल्सो अगेंस्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। 2014 election mainly known for different elements in Indian politics or which arise in Indian politics, that was personal attack on a leader. Generally in Indian politics, no one opposition leader or no one party leader attacked on personally each other. पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के वर्क पे एलिगेशन लगाते थे, उनके काम पे लगाते थे, उनकी पार्टीज की आइडियोलॉजी पे लगाते थे। बट अभी तक इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हुआ था कि आप किसी को पर्सनली एलिगेशन लगा रहे हो, एक्सेप्ट देन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के केस में था ड्यूरिंग द इमरजेंसी दैट जयप्रकाश नारायण पर्सनली अटैक्ड ऑन इंदिरा गांधी। इट ब्लेम्ड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ब्लेम किया था कि ये जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है ये मुझे पर्सनली अटैक कर रहे हैं, मेरी लाइफ स्टाइल पे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अदरवाइज अभी तक इंडियन पॉलिटिक्स में कभी भी पर्सनली अटैक नहीं हुआ था। अटैक मेट ऑन द opposition leader and other party leaders on the ideology and the work of government. Government क्या कर रही है इन पर। But in that election, the BJP leader making allegation on the personal allegation on the Congress parties, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and their families, and the Congress party leader making allegation on the Narendra Modi. So due to this, a hatred, mutual hatred condition arise in Indian politics, which were not earlier existing. Because earlier, parties were respecting to each other. पहले ये होता था पार्टी लीडर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, बट वो चीज़ जो अब इंडियन पॉलिटिक्स में थी वो चली गई थी। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वाज वन ऑफ लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और वन ऑफ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स विच हैड रेस्पेक्ट इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिनका सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो रेस्पेक्ट करती थी। वो किसी से भी कुछ कह देते थे बट उनका सारी पार्टीज में एक रेस्पेक्ट होता था। He also respected Indira Gandhi. He regarded Indira Gandhi as or compared Indira Gandhi as goddess Durga। 1971 का वॉर जब इंडिया ने जीता था तो वो ऑपोजिशन में थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को गॉडेस दुर्गा से कंपेयर किया था। सो दैट वाज इंडियन पॉलिटिक्स। बट इन 2014 इलेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स को ना चेंज हुई। बट आफ्टर दैट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्टेड, रीस्टार्टेड इन इंडिया। 84 के बाद जो बंद हो गया था, कोalition पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाती है। 2014 गवर्नमेंट और एनडीए थर्ड गवर्नमेंट नाउन मेनली फॉर द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड ऑल्सो फॉर द डीमोनेटाइजेशन। जो 500 एंड 1000 के जो नोट्स को बंद किया गया था, डीमोनेटाइजेशन, उसके लिए गवर्नमेंट मेनली जाना जाता है। एंड इन दैट गवर्नमेंट बीजेपी मेड देयर बेटर रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज। बीजेपी ने अपने जो रिलेशन है वो काफ़ी कंट्रीज के साथ अच्छे भी किए थे। एंड सर्जिकल स्ट्राइक मेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए थर्ड गवर्नमेंट ऑन द पाकिस्तान। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी इसी गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में। क्लियर? सो इट वॉज द एनडीए थर्ड गवर्नमेंट। आफ्टर दैट एनडीए फोर्थ गवर्नमेंट 2019, लास्ट ईयर इलेक्शन कंडक्टेड इन इंडिया इन 2019, and all the political thinkers, even I was also assuming that in that election BJP will not able to get the majority, or maybe the number of BJP got down because due to the demonetization, due to the GST, all news houses or media houses or political thinkers realized that the number of BJP that year got down because opposition parties are combining
और दे आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट द बीजेपी विद अलायंस और विद कोलिएशन। जो अपोजिशन पार्टीज थी अब वो एक साथ आ रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। जस्ट लाइक इन 1977 इलेक्शन और इन द इलेक्शन ऑफ 89, 77 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में और 89 में सर राजीव गांधी के अगेंस्ट में हुआ था कि सबने सोचा था कि इनको हराना है। वैसे 2019 में हुआ था दैट ऑल अपोजिशन पार्टीज थिंक दैट वी विल डिफीट द नरेंद्र मोदी, बट as I told you, we can't pre-assume the Indian politics और माइंडसेट ऑफ पब्लिक। आप पब्लिक के माइंडसेट को जल्दी जज नहीं कर सकते, क्लियर। एंड इन दैट इलेक्शन बीजेपी इम्प्रूव इज परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअली बीजेपी गॉट 303 सीट्स। 282 से बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज किया और 303 सीट्स बना ली। With the support of other parties, now BJP has 353 seats in the Lok Sabha, and it gave a strength to the BJP and also the majority government in India. 2019 का इलेक्शन है, वो वापस में अब एक ट्रेंड ला रहा है इंडिया में मेजोरिटी गवर्नमेंट का। now question arises there, India is a multi-party system, India follow the multi-party system, then or from 1989 different coalition government or multi-party government was running in India, and why this change appeared in India, clear? When we analyze the time period from 1989 to 2014, clear, that period mainly regarded as the coalition political government in India. When we compare this period, then we realize that due to the coalition government or due to the alliance government and instability always worked with the government। एक जो instability होती है वो हमेशा गवर्नमेंट के साथ वर्क करती है, because the ruling party or the largest party in the government always feared about that if they will not work with the support or with the interest of other alliance party, then these party will withdraw the support and their government got fall down। जो मेजर पार्टी होती है लाइक यूपी 1 में कांग्रेस थी, 140 सीट्स थे उसके पास, बट वो फेयर थी कि अगर मैंने इन पार्टीज को सपोर्ट, यूपी 1 गवर्नमेंट वाज रनिंग विद द सपोर्ट ऑफ डीएमके, तमिलनाडु की एक पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एंड द डिफरेंट पार्टी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, समाजवादी एंड लेफ्ट पार्टी सबके सपोर्ट से वर्क कर रही थी। सो दैट गवर्नमेंट ऑलवेज इन फियर दैट if we make such type of or if we work against the alliance parties, अगर हम alliance party के against में work करते हैं, then they will withdraw the support, वो support डालेंगे, हमारी government गिर जाएगी। The 2G scam and the coal scam not made by the Congress party leader। 2G और coal scam जो किया गया वो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने नहीं किया है। That corruption made by the alliance party leaders, DMK leaders, in DMK there were two leaders, Kanimoji, the daughter of Karunanidhi, DMK's founder member Karunanidhi, his daughter Kanimoji, she was in Spectrum Ministry or Telecom Ministry, she made 2G scam, Call Ministry, D Raja, DMK leader। So आप alliance government से instability आता है, and now people thought that, and youth, mainly youth are thinking that if alliance government will work in a nation, it will not good for development of nation, so we need a clear mandate government, and it put a greater impact in Indian politics, still in states also। Now in states also government is working with the clear majority। उत्तर प्रदेश में जनरली गवर्नमेंट मेजोरिटी से नहीं आती है, बिकॉज बहुत बड़ा स्टेट से 403 सीट्स है, बट बीजेपी वॉन्ट 350 सीट्स, बिकॉज आप क्लियर मैंडेट से आ रहे हो। पब्लिक को चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो स्टेबिलिटी से वर्क करे। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, 5 ईयर से पहले ही वो गवर्नमेंट गिर जाती है और वापस से हमें इलेक्शन करवाना पड़ रहा है। सो ड्यू टू ऑल दिस पावरफुल गवर्नमेंट और क्लियर मैंडेट गवर्नमेंट आर वर्किंग इन इंडिया, एंड इट इज a retrend for Indian politics which is good for us, वो काफ़ी सही होता है, but absence of opposition is not good। opposition का absence होना कभी भी सही नहीं होता।
In Indian politics, now opposition are is not in powerful condition, which is not good for Indian politics. We have example of Indira Gandhi. इंदिरा गांधी ने अगर इमरजेंसी एप्लीकेबल किया था बिकॉज उनके सामने कोई बड़ा ऑपोजिशन का लीडर नहीं था. अगर ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में होती तो इंदिरा गांधी नहीं करती. बोफोर्स स्कीम राजीव गांधी नहीं करते अगर उनके सामने ऑपोजिशन पार्टीज पावरफुल होती. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, देयर इज नो एलिगेशन ऑन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू मेकिंग एनी स्कैम. जब से गवर्नमेंट आई है एनडीए थर्ड से, अभी तक कोई स्कैम का कोई इन पर एलिगेशन नहीं लगा है कि इन्होंने कोई स्कैम किया. ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा है अभी तक. बट देयर इज अ नीड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी बिकॉज ऑपोजिशन आर वॉइस ऑफ क्रिटिकल वॉइस ऑफ पीपल्स. आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो ऑपोजिशन पार्टीज को, बट ऑपोजिशन में अगर कोई अच्छा लीडर है ही नहीं जो आपकी वॉइस को रिप्रेजेंट कर सके. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवन विल एग्री विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. सारे गवर्नमेंट से हम लोग एग्री हो जाए पॉसिबल नहीं है. बट सम पीपल्स आर एग्री, सम आर नॉट एग्री. So oppositions are the type of organization which raise the voice of critics and opposite views. जो गवर्नमेंट के अपोजिट व्यूज होते हैं उनको लेकर आते हैं और उनका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. क्रिटिक्स करना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. क्लियर? So it was all about the government which worked after 1989. Clear? Now the last point of this chapter is issues of development and governance. Clear? India is a country having diversity. There are different type of peoples, follow the different culture, different religion, different sects, belong to different sects, having their different interest. And it is duty of the government to fulfill the interest of all with the respect to the constitution. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबका इंटरेस्ट फुलफिल करें. बट allegation made on the different government that government is not working with the equal nature. Government are treating one section or making partially to another section. गवर्नमेंट जो है वो एक सेक्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिट में वर्क कर रही है, दूसरे के लिए नहीं कर रही. ये एलिगेशन हमेशा गवर्नमेंट पे लगता रहता है बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अटेन द पावर. जो पॉलिटिक्स होता है वो पावर को अटेन करने का मतलब होता है, कैसे आपको पावर मिल जाए. एंड ड्यू टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज सिक्योर देयर वोट बैंक. पॉलिटिकल पार्टीज एक कम्युनिटी का अपना वोट बैंक सिक्योर कर करती है कि मैं इस कम्युनिटी के फेवर में वर्क कर दूँ, ये मेरे लिए वर्क करेगा. When we talk about or after 2014 when Narendra Modi became the Prime Minister of India, it was also about assumption about the Narendra Modi that he is the leader of Hindu community, so he will not work for rest of community, especially for the Muslims. But Narendra Modi proved that assumption wrong because he gave a slogan that सबका साथ सबका विकास. उन्होंने कहा कि all the citizens of India are the part of government and we are the government of all, not for a particular community. We are running programs for all, not for a particular section. We are opening the banks, Jan-Dhan account. We are opening the bank accounts for all. There is no specific criteria for a particular community. He started different welfare programs for the girls' child, like Sukanya Samriddhi Yojana, that is for girl child. Free education, especially for girls, and several programs he initiated for the development of nation. And he is trying to access all the section of the society. When we read the chapter Plan Development, then the first line of this chapter was the objective of plan development at the time of independence of India to access all the section of the society, and the planning goal should access all the section. जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सोसाइटी के सारे सेक्शन को एक्सेस करना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए. So when we analyze the Narendra Modi government 6 years from 2014, then we got a conclusion that the government is working in that manner. No one allegation is on government that government making partiality in the developmental program. Triple Talaq, which was a major social issue for the Muslim community, that government worked to abolish that social evil. उसको हटाने के लिए इस गवर्नमेंट ने वर्क किया है. So we can say, or after the analysis of the government, maybe my assumption or other assumption are different because some people can be things against of me.
but it is a combined assumption of all that the government is working in good manner and we expect to this government. हम इस गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने आपको इलेक्ट किया है देन यू विल वर्क इन द फेवर ऑफ ऑल, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन. क्लियर? ओके, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.